Hello students, welcome to the world of physics. Today we will start our new chapter of second unit, uniformly accelerated motion. इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया यूनिफॉर्म मोशन. आज का चैप्टर है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. It is second chapter of unit second 2.2. Let's start. Before discussing uniformly accelerated motion, we will discuss what is acceleration. So our first topic will be acceleration. What is acceleration? Actually जब कोई ऑब्जेक्ट एक वेरिंग वेलोसिटी से मूव करता है, डेट इज उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है इन पर्टिकुलर इंटरवल टाइम, then that change in velocity in total time interval is called the acceleration. Hence you can define the time rate of change of velocity of an object is called the acceleration. That is the time rate of change of velocity of an object is called acceleration. That is students, जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिंग वेलोसिटी से चलेगा during interval of time, then it is called acceleration. That is acceleration is equal change in velocity divided by time interval. That is called the acceleration. Okay, this is the acceleration. Now acceleration, some points related to acceleration. Actually velocity is a vector quantity. That's why acceleration should be a vector quantity. First point is acceleration is a vector quantity. तो सबसे पहला कंसेप्ट हम समझते हैं, acceleration एक वेक्टर क्वांटिटी है. Acceleration is a vector quantity. Second one, if the velocity is increasing, the acceleration will be positive. That is, if the velocity is increasing, the acceleration will be positive. It is positive. That is, acceleration is positive if the velocity is increasing. Because the change will be positive in that case, increasing, and acceleration will be negative and is negative. That is, acceleration is negative if the velocity is decreasing. Because जब हम डिफरेंस करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, वो नेगेटिव है. ओके स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि रिटार्डेशन, डेसिलरेशन. तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड retardation or deceleration. The negative acceleration is called retardation. से retardation बोलते हैं, और deceleration. Okay students, तो what were the important points? वेक्टर एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉजिटिव होता है इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं और डेसिलरेशन बोलते हैं. That are the important points about the acceleration. Okay, this is the acceleration. Now what is the unit of acceleration? Actually acceleration is velocity
अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के जो यूनिट रहेंगे वो होंगे मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो एक्सेलरेशन के यूनिट बनेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज SI यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन, SI यूनिट। नाउ CGS यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में होगा और टाइम सेकंड में ही होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज CGS यूनिट। नाउ द डायमेंशन फार्मूला इसके यूनिट से ही बना लेते हैं। जो मीटर है वो लेंथ के यूनिट है, तो उसके लिए डायमेंशंस में आएगा L, मीटर लेंथ की यूनिट है, और दैट इज टाइम स्क्वायर, टाइम रेज़ टू -2। Okay student, this is the dimension formula of the acceleration. Now there are different types of acceleration, and first is uniform acceleration. What is uniform acceleration? Uniform acceleration क्या होता है? Actually acceleration तभी होगा जब velocity में change होगा। अगर वो change in velocity यूनिफॉर्म है, डेट इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो आप बोलोगे जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ये हमने कंसीडर किया है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर नेक्स्ट सेकेंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, 1 सेकेंड के अंदर चेंज हो जाती है वेलोसिटी, वो हो जाती है 20 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर आगे 1 सेकेंड के अंदर फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है 30 किलोमीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन 1 सेकेंड व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? द चेंज इन वेलोसिटी इज 10 किलोमीटर पर सेकेंड। जो चेंज आया वो आया 10 किलोमीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में चेंज आया 10 किलोमीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट उसी एक ही सेकेंड में फिर चेंज आया 10 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हर बार जो चेंज आ रहा है वो सेम चेंज आ रहा है, तो उस समय में जो एक्सेलरेशन होगा उस ऑब्जेक्ट के पास वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, if the velocity of an object changes by equal amounts in equal intervals of time, in equal intervals of time, and it is said to be moving with, it is said to be moving with a uniform acceleration, a uniform acceleration. Okay student, this is the uniform acceleration. Now the next is variable acceleration. आप इसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। टॉपिक इज वेरिएबल acceleration. Variable acceleration. This is the variable acceleration. Now, if the velocity of the object is changing by unequal amounts, then it is called variable acceleration. For example, जैसे ऑब्जेक्ट चल रहा था 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, विद इन 1 सेकेंड उसकी स्पीड में, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। सपोज वो हो गया 18 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब नेक्स्ट 1 सेकेंड में क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी हो गई 30 किलोमीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में। नेक्स्ट 1 सेकेंड बाद फिर उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, वो होगी 45 किलोमीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड। तो क्या हुआ, हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। तो पहली बार कितना चेंज आया, 1 सेकेंड के अंदर वो चेंज आया 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर पर सेकेंड का चेंज आया। नाउ इन अगेन 1 सेकेंड में चेंज कितना आया, चेंज आया इसका
12 किलोमीटर पर सेकेंड, 12 किलोमीटर पर सेकेंड का चेंज आया। अगेन फिर 1 सेकेंड में कुछ चेंज आया है। नेक्स्ट अब चेंज कितना आया है? सपोज 1 सेकेंड में चेंज आया 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हर बार 1 सेकेंड में इक्वल टाइम में कुछ चेंज आ रहा है, बट वो यूनिफॉर्म चेंज नहीं है, हर बार अलग अलग चेंज आ रहा है। तो इस समय में जो एक्सेलेरेशन होगा वो वेरिएबल होगा या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, इफ the velocity of an object, if the velocity of an object changes by unequal amounts, changes by unequal amounts, by unequal amounts in equal intervals of time, in equal intervals of time, in equal intervals of time, it is said to be moving with a variable acceleration. It is said to be moving with a variable acceleration, or you can say non-uniform acceleration, with a variable acceleration. Okay students, this is variable acceleration. Now क्योंकि ये वेरिएबल एक्सेलेरेशन है तो इसके बाद एवरेज एक्सेलेरेशन भी फाइंड किया जा सकता है। नाउ व्हाट इज एवरेज एक्सेलेरेशन? एवरेज एक्सेलेरेशन, ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सेलेरेशन से मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। जब उसकी वेलोसिटी बदल रही होती है अनइक्वल अमाउंट्स में, तो टोटल कितना चेंज आया और कितने टाइम में चेंज आया, उस रेशियो को हम एवरेज एक्सेलेरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इसी एग्जांपल में जो अभी हमने एग्जांपल लिया, टोटल चेंज कितना आया वेलोसिटी में। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी वो थी 10 किलोमीटर पर सेकेंड, और 3 सेकेंड्स बीतने के बाद वेलोसिटी हो गई थी 45, 18 से 30 हुई, फिर 45 हुई, तो लास्ट में कितनी होगी 45। तो 3 सेकेंड्स में 3 सेकेंड टोटल में टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज आया? टोटल चेंज आया 45 माइनस 10 दैट इज 35। और कितने टाइम में ऐसा हुआ? ऐसा हुआ टोटल 3 सेकेंड्स के अंदर, इन 3 सेकेंड्स के अंदर। तो ये जो हमारे पास आया दैट इज द एवरेज, इसे बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो दैट इज कॉल्ड द एवरेज एक्सेलरेशन। हेंस यू कैन राइट the average acceleration of an object, the average acceleration of an object for a given motion, the average acceleration of an object for a given motion is defined as the ratio of the total change in velocity, the total change in velocity of object, total change in velocity of object during motion, to the total time taken, to the total time taken, that is called the average acceleration. That is average acceleration, that is average acceleration is equal total change in velocity, total change in velocity divided by total time taken, total time taken. This is the average acceleration, total change in velocity divided by the total time taken, that is called the average acceleration. Okay students, now the next one is
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्चुअली जब हम एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का एक गिवन इंस्टेंट पर या एट अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग मोशन, जब वो मोशन कर रहा हो, को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस समय उस एक्सेलरेशन को आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नाम देते हो। ओके स्टूडेंट्स, आप बात करोगे किसी भी गिवन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की, तो उस समय उसका एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। The acceleration of an object at a given instant किसी भी समय, at a given instant or at a given point of the motion is called its instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. At a particular instant of time, जो भी acceleration होगा उसे बोलोगे instantaneous acceleration. And its formula can be given as limit change in time very small tends to zero. दैट इज जब टाइम बहुत छोटा होगा, चेंज टाइम, इसे लिखा जाता है डेल्टा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है डी वी बाई डी टी। अगर ये टाइम चेंज बहुत छोटा है, ना के बराबर है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इससे आप इस तरह से लिख सकते हो। दिस इज आल्सो द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारे चैप्टर का नाम क्या था? हमारा चैप्टर था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है? अब हमने पढ़ लिया कि एक्सेलरेशन क्या है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कब बनता है? अगर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, तो उस समय बॉडी के मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा जा सकता है। तो जो एक्सेलरेशन है अगर वो यूनिफॉर्म है, तो जो मोशन होगा उसे बोलेंगे आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बट पहले पढ़ते हैं एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। एक्चुअली जब किसी मोशन में एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन का मतलब है उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। वो किसी भी मैनर में चेंज हो सकती है, बट वो चेंज होनी चाहिए। तो उस समय में जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वही होता है जिसमें वेलोसिटी में चेंज आता है अलग अलग टाइम पर। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट instants at different instants. That is the velocity of the object keeps on changing. That is the velocity of the object keeps on changing with time. जो velocity है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। keeps on changing with time. Such a motion is said to be an accelerated motion. इस तरह के मोशन को आप accelerated motion बोलते हैं क्योंकि उसके पास अब acceleration आ जाता है। Such a motion is said to be an accelerated motion. Is said to be an accelerated motion. इस तरह के मोशन को आप accelerated motion बोलते हो। अब यही एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म कब हो जाता है? जब जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाता है तो वो मोशन भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज आएगा, तो उस समय में जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। इन एन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेटेड तो वो है, चेंज इन वेलोसिटी क्योंकि वहाँ हो रही है। अगर वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है एक्सेलरेशन और वो चेंज भी यूनिफॉर्म
रेट से हो रहा है वेलोसिटी में, तो जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा और वो जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। दैट इज इन एन एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी तो चेंज होनी है। एक्सेलरेटेड मोशन, if the change in velocity of an object in each unit of time is constant, the object is said to be moving with uniform acceleration. The object is said to be moving with आप constant acceleration लिख सकते हो, आप uniform acceleration लिख सकते हो, said to be moving with constant acceleration, and such motion is called uniformly accelerated motion. इस तरह के मोशन को आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हो। सेकंड वन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा? देखो, एक्सेलरेटेड मोशन तो है, मीन्स टू से उसकी वेलोसिटी में चेंज तो है, बट वो जो चेंज इन वेलोसिटी है इन यूनिट टाइम के अंदर वो कांस्टेंट चेंज नहीं है। अब वो कांस्टेंट चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा और जो वो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन तो होना है बट वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आप लिख सकते हो इन एन एक्सेलरेटेड मोशन if the change in velocity of an object in each unit of time is not constant, the object is said to be moving with variable acceleration. The object is said to be moving with variable acceleration. आप कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, and such a motion is called non-uniformly accelerated motion. Such a motion is called non-uniformly accelerated motion. Non-uniformly accelerated motion. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, वहां से समझेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन of an object, velocity of the object is different at different instants. The velocity is changing. Velocity जो है वो change हो रही है with time. Such a motion is said to be an accelerated motion. Now uniformly accelerated motion, same accelerated motion है जो change in velocity है किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिट टाइम में वो कांस्टेंट चेंज है। तो जो चेंज है वो कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा और उस मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। नाउ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन,
जो चेंज इन वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो नॉट कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट चेंज नहीं है, तो उस समय में उसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो वेरिएबल एक्सेलेरेशन होगा, एंड सच मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमने पढ़ा, चैप्टर स्टार्ट किया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें पहले पढ़ा व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के टाइप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटेड मोशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू very much.